آج ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا بڑا دن آ چکا ہے، اور جو شخص بھی آج ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے بڑے جمعۃ المبارک کے دن اللہ الصمد کا یہ بابرکت عمل پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اس کے رزق میں، اس کے معاملات میں بے شمار کی آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو بے شک وظیفہ پڑھ کے دیکھ لو، خود ہی یقین آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے اور دوسرا دولت والا بڑا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ الصمد کا آج آپ لوگوں نے خاص وظیفہ 7 گندم کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ یہ وہ بابرکت نام ہے جسے سن کر دل کی گہرائیوں میں سکون اتر جاتا ہے۔ اللہ پاک کا ایک بڑا ہی عظیم نام ہے جس کے معنی ہیں اللہ ہی ہر چیز کا سہارا ہے، وہی بے نیاز ہے، وہی سب کا مالک ہے، سب کچھ اس کی طرف محتاج ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد کی عظمت کو سمجھنا دراصل اس حقیقت کو ماننا ہے کہ کائنات کی ہر شے کا انحصار اللہ ہی رب العالمین کی ذات پر ہے۔ زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، مخلوقات سب اسی کی قدرت کے مظہر ہیں، مگر وہ خود اپنی ذات میں کامل ہے، وہ بے نیاز ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی نہ کسی کا سہارا طلب کرتا ہی رہتا ہے، کبھی دنیا کے مال پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی رشتوں پر، کبھی اپنی طاقت اور کبھی اپنے منصوبوں پر، مگر وقت بار بار یہ ثابت کرتا ہے سب سے بڑا سہارا اللہ رب العالمین ہے۔ تمہارے سارے سہارے ٹوٹنے والے ہیں، رشتے ٹوٹنے والے ہیں، دولت ختم ہونے والی ہے، صحت بھی کبھی ساتھ نہیں دے گی، منصوبے بھی ناکام ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ سہارا بن کے ہمیشہ ہر قدم پہ ابھرے گا۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے بڑے دن کو آپ نے اللہ الصمد کا یہ بابرکت عمل اور یہ بابرکت وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یہ رب العالمین کی صفت بھی ہے اور یہ قرآن پاک کی سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی۔ تو لہٰذا آج یہ تیر و ہدف وظیفہ جو بھی پڑھے گا، دولت کا یہ خاص عمل جو بھی پڑھے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اس کے نصیب میں، اس کے تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ والوں، آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، کیونکہ آج کا وہ دن ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت فجر کے وقت ہوئی، جو کہ 12 ربیع الاول کی صبح تھی، اور ہم لوگ جو ہیں وہ 11 ربیع الاول کو یہ عمل پڑھیں گے، اور آج دن میں یہ وظیفہ پڑھ کے انشاءاللہ رات میں صبح کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت ہم لوگ نبی پاک کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کا ہر ممکن اہتمام کریں گے اور کوشش کریں گے۔ اللہ والوں، آج ربیع الاول کی 11 تاریخ کو جمعۃ المبارک کے بڑے دن آپ نے ان خاص اعمال کے ذریعے رب کو راضی کرنا ہے۔ میرا اللہ پاک انشاءاللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، رزق میں برکت ہوگی، مال و زر میں کامیابیاں ہوں گی، اور اللہ والوں، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، یہ بڑا ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے بھی کئی بار اللہ الصمد کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور یہ جو گھڑیاں ہیں یہ جمعۃ المبارک کی بڑی ہی خاص گھڑیاں ہیں، اور جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو بہت فضیلت حاصل ہے، اور اس دن اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو چاندی کے اوراق اور سونے کے قلم دے کر بھیجتے ہیں، اور جو بندہ بھی پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو پہلے لکھا جاتا ہے، اور جو بعد میں داخل ہوتا ہے اس کو بعد میں لکھا جاتا ہے، اور جو پہلے داخل ہوتا ہے اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو اس کے بعد ہوتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا، اس کے بعد ایسے ہی بکرا، اور پھر ایسے ہی مینڈا، اور پھر ایسے ہی مرغی، پھر انڈا، اس طریقے سے ثواب کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش آپ لوگ کیا کریں کہ مسجدوں میں جلد از جلد روانہ ہوں، اور جلدی سے آپ لوگ پہلی صف کی طرف متوجہ ہوں، اور وہیں جا کے اپنی نماز جمعۃ المبارک ادا کریں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اگر تم لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ پہلے صف کی فضیلت کیا ہے تو تم لوگ قرآن دازی کرو، یعنی کہ قرہ ڈالو، اور پھر اس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کرو کہ کون پہلی صف میں بیٹھے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے صف والے نمازیوں کی بتائی، لیکن یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے ہم لوگ سب سے اینڈ میں ہی داخل ہوں گے، خطبہ ہونے کے بعد۔
इल्ला माशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक की तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल अव्वल का बहुत ही मुकद्दस महीना है और कल 12 रब्बुल अव्वल है और आज जो है वो 11 रब्बुल अव्वल है, यानी 11 रब्बुल अव्वल 12 रब्बुल अव्वल में दाखिल होगी। तो कोशिश करें कि इस अमल, इस वजीफे को बिलखुसूस कर लें। और फजर का वक़्त वो वक्त होता है जिस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। उस वक़्त सबसे ज़्यादा दुरूद और सलाम पढ़ने का आप लोगों ने एहतमाम करना है अपने घरों के अंदर, और ख़वातीन को भी यही चाहिए कि घरों में एहतमाम करें और खूब दुरूद पाक पढ़ने की कसरत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजें और जुमअतुल मुबारक के दिन को वैसे ही वो फजीलत हासिल है कि इस दिन अगर आप लोग जुमअतुल मुबारक के दिन नबी पाक की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ेंगे तो नबी पाक खुद समात करेंगे। और आम दिनों के अंदर जब आप लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं तो फरिश्ते जो है वो दुरूद और सलाम नबी पाक की बारगाह में पेश करते हैं, और फिर नाम जब पेश करते हैं तो नबी पाक इस तरह पहचानते हैं जिस तरह एक बाप जो है वो अपने बेटे को पहचानता है। तो अल्लाह वालों, इस दिन की बड़ी फजीलत है, बड़ी बरकत है, बड़ी रहमत है। तो आप लोग कोशिश करें कि इस महीने के अंदर अल्लाह पाक की ज़्यादा से ज़्यादा नेमतों से, रहमतों से मुस्तफ़ीज़ हों। और आज रबीउल अव्वल की 11 तारीख दूसरे दौलत वाले जुम्मे के दुल मुबारक के बड़े दिन आपने इन खास अमाल को बिलखुसूस पढ़ना है और बताए गए तरीक़ेकार के साथ पढ़ना है। इस वजीफे को यूं तो आप लोग एक मुट्ठी चीनी चावल पर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सदका करना मकसूद है। मैंने बार बार आपको यही बताया, हर वीडियो में बताता हूं कि सदका करना मकसूद होता है कि आप लोग सदका करें अल्लाह पाक की बारगाह में। अल्लाह पाक इसको ज्यादा पसंद करता है कि जो बंदा अल्लाह पाक की राह में सदका करे। तो अल्लाह वालों, आज रबीउल अव्वल की 11 तारीख दूसरे दौलत से भरे जुमातुल मुबारक के दिन जो शख्स भी इन खास आमाल को पढ़ेगा वो अल्लाह पाक के करीब हो जाएगा। अल्लाह पाक उसको अपना कुर्ब अता करेंगे, इतना कुर्ब अता करेंगे कि वो अपना दोस्त बना लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोस्त बनना तो आज इन खास आमाल के जरिए अल्लाह पाक को राजी करें। मेरा अल्लाह पाक आपके रिस्क में बेशुमार की बरकत और रहमत अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात का ज्यादा हकदार है कि हम लोग अल्लाह पाक की ज्यादा इबादत करें और रब की पैरवी करें। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने किस तरीके से अमाल पढ़ना है जरा उसको ध्यान से मुलाजा करें। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जुमातुल मुबारक के बाद पढ़ लें, या तो चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप इन अमाल, इन वज़ाइफ को पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं और ना ही जगह की कोई कैद है। जब आपको वक्त मिले आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़ के अल्लाह पाक की बारगाह में अपने आप को मनवा सकते हैं। आप लोग दुनिया जहान की किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हो, इंडिया से है, पाकिस्तान से है, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया की जिस कोने से आपका ताल्लुक है, बस आपके मुल्क में माह रबीउल अव्वल की 11 तारीख आ जाए, आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। पहले आए आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने का वास्ता, रबीउल अव्वल के दूसरे जुमे का वास्ता, 11 तारीख का वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अनीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं,
बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इस बेवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना ज़ाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदैन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले, उन सब को जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफ्फार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना, मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं।
قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے، اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے، اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اور یہ بھی اس کے معنی ہے اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ
दम कर दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कुरान पाक की एक बहुत ही खास सूरह मुबारका पढ़नी है। ये कुरानी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। ये कुरानी सूरत पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है। इस कुरानी सूरत को पढ़ने से पहले आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसी भाई, दोस्त और मेरी बहनें मौजूद हैं कि वजीफे पढ़ती हैं, दुआएं मांगती हैं, तो उनके जहन में ये ख्याल आता है कि हमने तो दुआ मांग ली लेकिन दुआ हमारी सुनी नहीं गई, हमारी दुआ का वो असर नहीं मिला। तो इस हवाले से एक आदमी ने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछा कि मेरा अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ। तो बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, भाई वो तेरे गुनाहों की सजा भी उस वक्त नहीं देता जब तू गुनाह करता है। नाजरीन, कितनी प्यारी बात है। बुजुर्ग ने बताया कि जब तू गुनाह करता है तेरे गुनाह की सजा तुझे फौरन नहीं मिलती। जो लोग मेरे भाई, मेरी बहनें मुश्किल वक्त आ जाने पर बेसब्रे हो जाते हैं, जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, वो इस बात को याद रखे कि जब हमसे गुनाह हो जाते हैं तो मेरा अल्लाह हमें फौरन उसकी सजा नहीं देता। इसलिए जब भी दुआ मांगे, जब भी कोई वजीफा पढ़े, अल्लाह से सब्र के साथ मांगे। अल्लाह आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता, वो आपकी दुआ को कबूल भी करता है, आपको खजानों का मालिक भी बनाता है। लेकिन आपके हक में जो बेहतर होता है पहले वो फैसला फरमाता है। आज जो बे औलाद हैं, बेरोजगार हैं, मकरूज हैं, परेशान हैं, जेल से रिहाई के लिए, बेटियों के अच्छे रिश्तों के लिए, बड़े से बड़े मकसद के लिए इस कुरानी सूरत को पढ़कर देख लें। जो लोग दर बदर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, सूरतुल इखलास को पढ़कर देख लें। सूरतुल इखलास रब की वहदानियत को बयान करती है। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना ही वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। जब कोई बंदा सूरतुल इखलास पढ़ता है, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है। अल्लाह अपनी वहदानियत के तुफैल रिस्क से, दौलत से माला माल कर देता है। आज सूरतुल इखलास का ये वजीफा आपकी तकदीर को खोल कर रख देगा। इस वजीफे की इतनी बरकतें हैं, इतने फायदे हैं कि ये अमल अगर आप लोग औलाद भी मांगे तो वो भी मिल जाएगी। जिनके पास औलाद है उनकी किस्मत भी चमका देगी। जिनकी औलाद दर बदर की ठोकरें खा रही है उनके नसीब के, बदनसीब के ताले भी खोल कर रख देगी। इस अमल का मोजज़ा ऐसा होगा, ऐसा मोजज़ा होगा कि आप लोग अपनी खुली आंखों से देख लेंगे कि आज किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके घर को खुशहाल कर दिया। अल्लाह वालों, खुशहाली चाहते हो तो इस अमल, इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सूरतुल इखलास शरीफ को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 बार यानी कि 10 टाइम्स पढ़ना है। और जब आप लोग 10 बार सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ ले तो अल्लाह वालों, इसका फायदा क्या होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सहाबा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत के बारे में ना बताऊं जिसको पढ़ने से तुम्हारी जबान भी नहीं थकती और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें 10 सिपारों का सवाब भी अता फरमाएगा। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने इरशाद फरमाया कि क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जरूर बताएं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद।
इस तरह से ये पूरी सूरत तमाम करी और आपको बताया इस सूरत को पढ़ने वाले को 10 सिपारों का सवाब मिलता है, और जब इस सूरत को 3 बार पढ़ा जाए तो आपको एक मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब दिया जाता है। अल्लाह वालों, इस तरह से इस सूरत के अंदर अगर इसका तर्जुमा सुनेंगे तो इसकी पूरी पूरी निस्बत अल्लाह की तरफ है। अल्लाह पाक ने फरमाया ये सूरत मेरी है, इसकी निस्बत मेरी तरफ है, यानी कि कुल हु अल्लाहु अहद, ए हबीब तुम फरमा दो कि वो रब एक है, वो बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा, और उसके जोड़ का कोई नहीं। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक की तौहीद को बयान करती है, अल्लाह पाक की यकबस्तगी को बयान करती है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ना है, सिर्फ 10 बार पढ़ना है। जब आप लोग सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 नाम हैं, या करीमु या अल्लाह। या करीम का मतलब एक करम करने वाले, या अल्लाह का मतलब ए मेरे अल्लाह, यानी कि ए मेरे माबूद। आप लोगों ने इस तरह से या करीमु या अल्लाह को पढ़ना है। जब बंदा या करीमु या अल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह पाक के करीब से करीब तर होता चला जाता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने या करीमु या अल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या करीमु या अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिज़ा कीजिएगा। या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स या करीमु या अल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, हमारी अगर जिंदगी पर या फिर हम पर अल्लाह पाक की सिर्फ एक नजर करम हो जाए, सिर्फ एक नजर करम हो जाए, हमारी पूरी जिंदगी के लिए वो नजर करम एक काफी है। अल्लाह वालों, आज अल्लाह पाक की अगर नजर करम चाहते हो तो ये 3 वज़ाइफ, छोटे छोटे वज़ाइफ हैं। पहले अल्लाह उस समद को पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है बता चुका हूं। फिर सूरतुल इखलास शरीफ को सिर्फ 10 बार पढ़ना है, कितना कोई वक्त लग जाएगा। उसके बाद फिर या करीमु या अल्लाह को पढ़ना है, 11 बार पढ़ना है। इतने छोटे छोटे वजीफे अल्लाह वालों, इतने छोटे छोटे वजीफे कि आपके बामुश्किल 1 से 1.5 मिनट लगेंगे। ये अमल आप मुकम्मल कर लेंगे। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी बिलखुसूस पढ़िएगा। कितनी बार पढ़िएगा? 3-3 बार पढ़ लें, या 5-5 बार, 7-7 बार, 11-11 बार। जितनी ज्यादा आप दुरूद इब्राहिमी अव्वल आखिर पढ़ेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा, दुआ इस तरह में मांगिएगा कि गोया आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार कर रहे हो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।